Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. So we meet once again, and I hope my audio and video is going good. So let's get started. We have been doing, and we have almost come to the end of analysis of financial statements. उसके अंदर मैंने आपको कितनी बार याद दिलाया है that we have done the vertical format of balance sheet and income statement. Income statement का मतलब है trading account, profit and loss account. हमने ratio analysis करके कुछ किया है और हमने cash flow statement किया है. ओके, एक दो एकाध क्वेश्चन यहाँ वहाँ के टाइप के बच गए थे, तो आज हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं बैलेंस शीट पर, बट नॉट द एंटायर तामझाम ऑफ द बैलेंस शीट. वी आर स्पेसिफिकली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द कैलकुलेशन पार्ट और द इंटरप्रिटेशन पार्ट जो कंपेरेटिव के साथ में कनेक्टेड है. नाउ बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद टुडेज कंपेरेटिव बैलेंस शीट, नॉट वन क्वेश्चन बट टू क्वेश्चन, लेट मी क्लैरिफाई कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए. टेक्स्ट बुक में यहाँ वहाँ पर गड़बड़ी होती रहती है. आपका जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 है और जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 है, 1 और 3, दे आर द सेम. सो ऊपर नीचे, दैट इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1, दिस वन, एंड द अबव और द बिलो वन इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3. जस्ट टू स्पेसिफाई, there is only one difference. I repeat, if you look above, share capital 60,072, नीचे भी आपको वही दिखेगा 60,072, मतलब सेम है. ऊपर रिजर्व एंड सरप्लस 24 एंड 30, नीचे भी आपको वही दिखेगा 24 एंड 30. ऊपर फिक्स्ड एसेट्स 1,20,000, 1,50,000, नीचे भी वही दिखेगा. बोथ द क्वेश्चंस दिखावट में, लुक में अलग अलग दिखते हैं, बट एक्चुअली दे आर द सेम. हाँ, अब जो प्रिंटिंग गलती हुई है टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 3 में, वो मैं क्लैरिफाई करता हूँ कि ये जो आपको लोन दिखता है, ये जो सेकेंड ईयर का लोन है या तो क्लोजिंग लोन, उन्होंने 57,000 दिया है. टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 3 में प्रिंट हुआ है 57,000. इफ इट इज़ 57,000 देन वो क्वेश्चन गलत है. आप उसको सॉल्व नहीं करोगे, या तो सॉल्व करोगे तो आपका आंसर भी रॉन्ग आएगा. देयरफॉर आई रिपीट माई सेल्फ, I am making a rectification in and I am taking it as 51,000. Okay, it is not 57,000, and accordingly the above question and the below question, question number 1 and question number 3, they are absolutely the same. So basically the solution which is behind me is applicable for both of them. Okay, तो दो अलग लेक्चर ऑब्वियसली ना मुझे 2 बार रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है. नाउ
क्या दिया है? वेल 2 साल दिए हैं, 31st of March 2018 एंड 31st of March 2019 एंड दे हैव आस्क्ड अस, हमसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया है आप इसको कंपेरेटिव में कन्वर्ट करो। कंपेरेटिव में कन्वर्ट करने के पहले वी हैव टू डू इट इनटू अ वर्टिकल फॉर्मेट। तो चलिए पहले तो वर्टिकल फॉर्मेट में कर लेते। तो जस्ट टू क्विकली रीड व्हाट इज बीइंग गिवन। कैपिटल, तो दैट विल कम इन शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस, इट विल बी अ पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, जो भी शेयर होल्डर्स फंड्स में आता है। लोन्स, बोरोड फंड्स में हम लिखेंगे। क्रेडिटर, करंट लाइबिलिटी, आई रिपीट, क्रेडिटर मीन्स करंट लाइबिलिटी। देन फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट तो वही है फिक्स्ड एसेट, एंड करंट एसेट भी वही है करंट एसेट। तो आई रिपीट, क्रेडिटर जहाँ पे कहा वो करंट लाइबिलिटी ही होता है, प्लीज नोट दैट। ओके, हाँ, सो बेसिकली क्या करना है, कुछ नहीं, सोल्यूशन स्टार्ट करना है। जो क्वेश्चन नीचे है उसमें फिक्स्ड एसेट दिया है, दे हैव गिवन टू यू इन अ वर्टिकल फॉर्मेट। सो दे हैव गिवन टू अराउंड 6 items. Those 6 items have to be rearranged into a vertical balance sheet, and what I do right now for question 1 is also applicable for question 3. Let me start. Okay, पहले तो यहाँ से मैं थोड़ा शिफ्ट हो जाता हूँ because then it is clearly visible for you what is the answer. We start with sources of funds, in which मतलब पैसा कहाँ से आया, या तो शेयर होल्डर से आता है या तो बोरोड फंड्स। जो शेयर होल्डर से आता है दैट इज कॉल्ड एज शेयर होल्डर्स फंड्स, इन विच यू गेट शेयर कैपिटल। नो दे हैव यूज्ड द वर्ड कैपिटल, आप शेयर कैपिटल लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60,000 एंड 70,000, तो दैट इज लाइक ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इसी में रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, तो दैट्स व्हाट आई एम राइटिंग, रिजर्व एंड सरप्लस। 24 and 30,000. Normally a long time back there is something called as miscellaneous expenses, okay, or fictitious asset, miscellaneous expenditure. It is very rare that at your level of 12th standard textbook में उन्होंने वो actually पूछा है। There are around 2 or 3 more questions remaining. अगर मुझे दिख गया तो मैं आपको दिखा दूंगा, बट right now तो नहीं है, तो इसके लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। Therefore ये दोनों अगर हम ऐड करें तो हमको शेयर होल्डर्स फंड्स मिल जाएगा। तो फर्स्ट ईयर का ऐड करें 60 + 24, 84,000, 72 + 30,000, 1,02,000. The last 2 columns which is the interpretation part, मतलब क्या है मेरा, जहाँ पे आप परसेंटेजेस ढूंढोगे वो अभी चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट इट नाउ। अब आएगा बोरोड फंड्स, इन दैट लोन्स जो आपने लिया है विच इज़ अबाउ मी, आप देख सकते हो 34,000, एंड जो मैंने कहा थोड़ा गड़बड़ है, नॉट इन दी अबाउ क्वेश्चन, ये जो मेरे सामने है ना, सॉरी ये 51, वो टेक्स्ट बुक में 57 है, बट इट इज़ एक्चुअली 51,000। ओके, सो दैट्स व्हाट आई एम राइटिंग, लोन्स में 34 and 51, एंड दैट इज इट, देयर इज नथिंग एल्स जो बोरोड फंड में आना चाहिए, तो यही बी है। ए प्लस बी अगर आप करो, जो आपको करना ज़रूरी है, यू गेट टोटल फंड्स रेज्ड। तो कंपनी ने पैसा इतना जमा किया, ओके, यू हैव गॉट अ डिफरेंट व्हाट डू यू कॉल सब्जेक्ट जिसका नाम है एसपी, नॉट ऑल ऑफ यू हैव टेकन, सम ऑफ यू टेक। उसका अंदर सबसे पहला चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, एंड उसके अंदर दे एक्सप्लेन टू यू कि एक कंपनी कहाँ से अपना पैसा जुटा सकती है। तो बेसिकली दिस इज लाइक अ प्रैक्टिकल वे ऑफ इन्फॉर्मिंग दैट टू यू। ओके, सो ए प्लस बी विल गिव यू 1,18,000 and 1,53,000. दिस इज वन साइड ऑफ द बैलेंस शीट। कंपेरेटिव तो बिल्कुल नहीं किया हमने, ये वर्टिकल बैलेंस शीट का एक साइड है। दूसरी साइड को एक लाइन के बाद आप नाम दे सकते हो एप्लीकेशन ऑफ फंड। द वर्ड एप्लीकेशन मीन्स पैसे आपने कहाँ पे खर्चा किया। वेल, पहले तो फिक्स्ड एसेट पे होता है। इन द क्वेश्चन अबाउ 1,20,000 and 1,50,000, एंड देन इन्वेस्टमेंट, अगेन वेरी रेयर है, बट इन्वेस्टमेंट आज के क्वेश्चन में नहीं है, तो वर्किंग कैपिटल आएगा।
व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल मतलब जो पैसे की ज़रूरत मुझे पड़ती है मेरी गाड़ी को, मेरी कंपनी को अभी चलाने के लिए। अभी का मतलब 1 साल, 1 साल। तो उसको करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी आप करोगे। नाउ करंट एसेट इज गिवन 28 एंड 27,000। 28 पहले, फिर कम होके 27। करंट लाइबिलिटी नहीं बोला है उन्होंने, क्रेडिटर बोला। प्लीज नोट, ये जो करंट लाइबिलिटी यहाँ पे लिखा है दैट इसके अंदर आता है क्रेडिटर। ओके, आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो क्रेडिटर, ब्रैकेट में क्रेडिटर। हाउ मच? 30 एंड 24,000। नाउ करंट एसेट माइनस सब्ट्रैक्ट करंट लाइबिलिटी विल गिव यू वर्किंग कैपिटल। तो 28 minus 30, please note it is a negative answer, it is not a positive answer. तो it is negative 2000. 27 minus 24, ये positive है 3000. So right now ऊपर फिक्स्ड एसेट है और आपके सामने जो आया वो है वर्किंग कैपिटल। ए एंड बी दोनों को ऐड करो, यू विल गेट टोटल फंड्स एम्प्लॉयड। मतलब इतना पैसा आपने खर्चा किया आपके कंपनी के लिए, पार्टी शार्टी में नहीं, आपके कंपनी के लिए। विच इज द सेम, होना चाहिए द सेम एज अबाव। टोटल फंड्स रेज्ड 1,18,000, 1,53,000। इतना करोगे तो आपका दिल बाग बाग गार्डन नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी हैप्पी। व्हाई? देखो भाई, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कंपैरेटिव, वेयर हैव यू कंपेयर्ड, दैट इज राइट। फर्स्ट आई हैव टू डू वर्टिकल, पहले एनालिसिस के लिए वर्टिकल किया, अभी इंटरप्रिटेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मेक इट इनटू कंपैरेटिव। व्हाट डज कंपैरेटिव मीन? आई एम कंपेयरिंग 2 years। इकोनॉमिक्स में ना यू हैव अ चैप्टर बाय द नेम ऑफ इंडेक्स नंबर्स। वो इंडेक्स नंबर्स में भी यू डू द सेम, यू टेक 1990 एंड 2020 एंड देन यू कंपेयर। अभी यहाँ पे वैसे नहीं करना, यहाँ पे इमीडिएट 2 years 2018 2019। ओके, द फर्स्ट आइटम, लुक अबाउट, राइट अबाउट। शेयर कैपिटल वॉज 60,000, इट बिकेम 72, मतलब इंक्रीज हुआ ना 12,000। रिजर्व एंड सरप्लस वॉज 24, इट बिकेम 30, इंक्रीज हुआ 6,000। द टोटल ए शेयर होल्डर्स फंड्स, वो भी तो इंक्रीज हुआ 18,000। सो आई रिपीट, जिसका मैथ्स जल्दी है उसका जल्दी हो जाएगा, जिसका मैथ्स थोड़ा स्लो है नो प्रॉब्लम, अपने स्पीड पे करो, बट आंसर यही लाना। जब इंक्रीज होता है तो पॉजिटिव, जब डिक्रीज होता है तो नेगेटिव। लोन इंक्रीज हुआ 34 से 51, तो 17,000 इंक्रीज हुआ। टोटल फंड्स रेज्ड आल्सो इंक्रीज्ड 35,000। सो आई रिपीट, अगर पहले से दूसरा साल, पहला साल को कहते हैं बेस ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला साल कोई भी साल रहेगा, ये वाले सम में 2018 इज द बेस ईयर, तो उसमें जितने अमाउंट आपको दिख रहे हैं वो बेस अमाउंट है। नाउ वी गो टू एप्लीकेशन, उसमें भी फिक्स्ड एसेट इंक्रीज हुआ 30,000। बी लिटिल केयरफुल विद करंट एसेट, पहले 28 था, बाद में 27, तो दैट इज नॉट एन इंक्रीज, इट इज अ डिक्रीज। डिक्रीज को आपको लिखना है ब्रैकेट में, ब्रैकेट, सो दैट्स अ नेगेटिव। व्हेन इट कम्स टू करंट लाइबिलिटी सेम, इट इज नेगेटिव। वर्किंग कैपिटल इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग टू अंडरस्टैंड। देखो पहले -2 है, -2 का मतलब -2,000, देन इट बिकम्स +3। तो पहले है -2 एंड देन +3, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वो -2 से -1 हुआ, देन 0 ऑन अ नंबर लाइन अगर आपको पता है, देन बिकेम +1, +2, +3। सो द बदलाव, इफ यू हैव टू कम फ्रॉम हियर टू हियर, यू हैव टू वॉक 5 steps, 5 कदम आपको चलने पड़ेगी, इंक्रीज करने पड़ेगी। तो जो द चेंज इज इंक्रीज ऑफ 5,000, increase of 5,000, not negative, increase of 5,000. And lastly, total funds employed to matches with total funds raised 35,000. This is half of your comparative. Next part of comparative, which is the last part, is what? Percentage. Because whether it is common size या comparative, हम ये क्यों करते हैं? क्योंकि numbers जो होते हैं वो लोगों को, नॉर्मल जनता को समझने में मुश्किल होता है या तो याद रखने में मुश्किल होता है। तो अगर परसेंटेज में बात करें, नॉट जस्ट कंपनी, सभी बड़े बड़े जो कंपनीज है
ओके बड़े छोटे जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है, सभी लोग अपना जो इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करते हैं वो करते हैं परसेंटेजेस में, क्योंकि थोड़ा सिंपल हो जाता है अंडरस्टैंड करने में। ओके इसका एक फॉर्मूला है, जो इंक्रीज डिक्रीज है, इंक्रीज या डिक्रीज, उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें। एग्जाम्पल, ऊपर आपको शेयर कैपिटल दिखता है, उसका इंक्रीज कितना है 12,000, बट वो 12,000 परसेंटेज में कितना है। टू डू दैट you have a formula which is above me, amount of increase decrease मतलब 12,000 upon base year amount is 60,000 into 100। I repeat myself, अगर शेयर कैपिटल का इंक्रीज आपको परसेंटेज में चाहिए, the above is what you have to solve and you will get 20%। so that's exactly what I'm going to write। दूर लिखा है 20% दूर। अच्छा, सो एवरी टाइम यू टेक इंक्रीज और डिक्रीज अपॉन बेस ईयर अमाउंट, बेस ईयर का अमाउंट चेंज होते जाता है बट जो वो लाइन में है वो बेस ईयर अमाउंट इंटू 100। इफ यू लुक एट रिजर्व एंड सरप्लस, द इंक्रीज इज ऑफ हाउ मच, देख लो आप 6,000, बट द बेस इज हाउ मच 24,000। सो रिजर्व एंड सरप्लस का जो मेरे पीछे आ रहा है आंसर 6,000 upon 24,000, 25%। Okay, so very quickly let me write total, which is shareholders funds, okay, A plus share capital plus reserves, the increase is 18,000, the base amount is 84,000, increase is here 18,000, बेस अमाउंट 84,000। डेसिमल में आता है तो 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करो, 21.43। आई रिपीट दिस वन, 21.43। अगर डेसिमल में आता है तो प्लीज ज़्यादा टेंशन मत लेना, राउंड ऑफ कर लेना। नेक्स्ट इज लोन, कितना था कितना हुआ, वेल 34 था 51 हुआ, इंक्रीज ऑफ 17,000। तो पहले उसको आप परसेंटेज में कैलकुलेट कर लो, नो प्रॉब्लम, कर लेते हैं। अपॉन यू गेट एग्जैक्टली 50%, लिख लिया। अभी टोटल फंड रेज का जो इंक्रीज है वो है 35,000, बट जो उसका बेस है वो है 1,18,000। ऐसा तो कोई खास कनेक्शन नहीं है, बट परसेंटेज तो उसमें से आ ही सकता है। सो व्हेन यू डू 35,000 अपॉन 1,18,000 you get 29.66। This is half the comparative statement। अभी एप्लीकेशन का काम बाकी है, जो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देयर इज नो नीड टू बी वेटिंग फॉर एनीथिंग। आई होप यू आर जॉटिंग इट डाउन। फिक्स्ड एसेट्स का इंक्रीज इज 30,000, बट द बेस अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट इज 1,20,000। नो प्रॉब्लम, कर लेते हैं। Obviously for me it is a lot quicker, but you have to do the cancellations, the multiplications, the division, and then आपको आंसर आता है। जो आपको आंसर आए वो होना चाहिए 25%, मतलब जो और जब आए आपको। करंट एसेट्स, what about that? Well, about current assets, पहले 28 था, बाद में 27, तो 1,000 is decrease, 1,000 is decrease, बट स्टिल लिखना तो वैसे ही है जैसे फॉर्मूला बोलता है, बिकॉज द फॉर्मूला सेज इंक्रीज और डिक्रीज, तो डिक्रीज ले लिया। द आंसर विल रिमेन द सेम, द परसेंटेज विल बी नेगेटिव, दैट इज इट। आंसर आपका जो रहेगा वही रहेगा, 3.57%। सो दैट्स व्हाट्स रिटन। फिर करंट लाइबिलिटी मतलब क्रेडिटर, ये वाले सम में क्रेडिटर वो भी नेगेटिव है, तो वो भी अपॉन बेस अमाउंट कर लेते हैं। सिर्फ क्या है, परसेंटेज जो आएगा दैट विल बिकम नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव। 20 वर्किंग कैपिटल थोड़ा गड़बड़ी होता है, इट इज -2 बाद में +3, तो द डिफरेंस इज 5,000, इंक्रीज ऑफ 5,000। सो दिस इज वन जहाँ पे आपको थोड़ा अजीब परसेंटेज आता है
because it crosses 100. It crosses 100. 250%. It crosses 100, which is fine, huh? Fine. जब some companies perform exceptionally well in the share market, in the area of their expertise, तो उन लोगों का profit 10 गुना ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा बढ़ता है. तो it's not just 100%, it's 500%, 400%, depends upon the performance of the company. The last is the same as what is above, total funds raised. तो उसका percentage is 29.66. Even total funds employed will be 29.66. I repeat myself, the solution besides me is applicable for 2 questions in the textbook. Practical problem 1 and जो मेरे पीछे है practical problem 3. There is only one printing error जो मैंने यहाँ पे rectify किया है. This is 50 not 7000 but 51,000. अगर वो 57 रखे तो ये पीछे का जो क्वेश्चन है वो गलत आएगा, मतलब उसका सोल्यूशन गलत आएगा. इसके लिए जो रेक्टिफिकेशन है मैंने कर दिया है और मैंने आपके साथ में शेयर कर लिया है. ओके, दिस वाज ऑब्वियसली नॉट अ वेरी लॉन्ग लेक्चर, so I will not take up much of your time, and very quickly remind you कि if you did like the explanation, understood the explanation, please like the lecture. सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबा देना, और अगर कोई डाउट रहेगी तो कमेंट बॉक्स में आप वो डेफिनेटली दे सकते हो. वेरी इंपॉर्टेंटली आप ये चैनल के बारे में, ये चैनल के वीडियोस आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, जितने लोगों के साथ भी होता है, ताकि चैनल के जो फ्री लेक्चर्स है उसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिल पाए. टिल द टाइम वी मीट अगेन, अपना ख्याल रखना. गुड डे टू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस. बाय फॉर नाउ.